से मौत बंदे पूछो। जिस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं वो जवाब दो। मैं आना जिंदा मालिक ने कि अच्छा फौत हो अल्लाह गए। यार साहब मौका दो जरा, अल्लाह यार साहब मौका दो। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ? फिजान साहब एक भाईजान मिनट, एम्बुलेंस जरा अपनी साइड ते ही पार्क करो। फिजान साहब एक फिजान साहब एक ਪੂਰੀ मिनट ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। WhatsApp ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। फिजान साहब एक मिनट रहे। ठीक है जी, मैं जी मान लिया कि मैं जी भाई जी मान लिया कि फौत हो गए ने, उन्हें वापस कोई नहीं आवन। हुण दसो, चलो जी। मान लिया? हाँ ठीक है, अगे पक्की चलो। गल है? पक्की गल है, चलो जी। ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह जी। हाँ करो और शुरू। तुसी मान लिया कि कुरान शरीफ विच उन्हां दी वफात लिखी है? हाँ ठीक, मान लिया जी भाई, मान लिया। चलो जी। ठीक ठीक नहीं, वाकई मान लिया? ओ भाई जी अल्लाह दे ਯਾਰ बंदे, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ओ अल्लाह दे बंदे, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया। इस टाइम चलो। अगे चलो। चलो मेरा ख्याल 4-5 बारी हो रखो ताकि पक्का हो जाए काम। जी पक्का हो जाए ना जी। हुसैनी साहब पक्का करके आगे चलो। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा मतलब जी। ठीक है, इतना ही है, 4-5 बारी हो रख तो फिर ठीक हो जाए। नहीं, नहीं, बस- ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ नहीं नहीं राणा साहब हुण विच नहीं आना, वाटर साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ। ਵਾਟਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਸ਼ੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 5 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣ ਹੋ ਸੱਤ ਗਿਆ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ। हैं? बस एनी बारी कह देन कि अगली बारी यह नहीं कहना कि नहीं नहीं वो तो मैं जिंदा अगली बारी नहीं आसमान कह पे। रहा जी भी ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਹੁਣ नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं गल है, इस अच्छा तरह ठीक नहीं। है ठीक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 7 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ, 9 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ, ਧਾਨੀ 11 ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਟਾਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। हैं? किस तरह पता लगेगा कि ना मान लिया? ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਆਇੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਤੇ ਲਵੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ जिस ਕਿਹਾ तरह ਮੰਨ उन्होंने ਲਿਆ। किया है नहीं ना मान लिया राणा साहब, वो नहीं मान राणा लिया। साहब, जिस तरह उन्होंने किया है ना कि अच्छा चलो मान लिया, हाँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ हाँ ਅਗਲੀ नहीं ਗੱਲ नहीं ਕਰੋ। यकीन आया कि चलो मान लिया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਵਾਕਈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। हाँ ਤੇ जी। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 7 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ, 9 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ, 11 ਅਗਰ ਵਾਰੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਕਾਫਰ ਨੇ ਫਿਰ। ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੰਨਣੇ, ਕਾਫਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਅਗਰ ਅਲਾਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੈ ਨੇ? ਹੁਸੈਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਖਾਤੁਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਛੁਡਾਉਣ ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ, ਦੱਸ। ਅਸਲ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਹੋ। ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਵਾਟਰ ਔਰ ਅਲਾਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ नहीं सर, वो कल बात मौके करा मेरी वो बात तो करा है। हुसैन साहब वो बात तो करा हुसैनी साहब कल ਦੇਖੋ मौके मेरी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਸਰ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਲੈ ਗੱਲ ਕੇ ਆਏ हुसैन ਨੇ। साहब ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਠਹਿਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ हाँ हुसैन साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਔਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਕਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਡੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਮਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਨੇ ਕਾਸਮ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ? ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਮ ਦੀ ਜਬ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਮਡੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ- ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਮੇਰੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾ अच्छा हम तो सारे म्यूट करो फजान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सारे म्यूट कर दो ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ हुसैन साहब ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਮਡੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਮਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ ले लो ए तालु राजा साहब ਉਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ तालु कसम म्यूट करना ओ अल्लाह यार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕੇ ਰਾਜ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦ ਲੈ ਲਈ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੈ ਲਓ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਵਾਟਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਬਸ ਕਿ ਮਿਊਟ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ वाटर साहब अनम्यूट करो वाटर भाई वो पानी किधर गया वाटर भाई मुझे लगता किसी बैग तक गए ने जी भाई जी, जी जी, जी वापस आ गया ਵਾਟਰ ਭਾਈ आप ਗੱਲ ਕਰੋ यार साहब ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ बात ਕਰੋ ਜੀ करें। ਅੱਗੇ जी जी फरमाइए जनाब यार भाई ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ अच्छा जी आपने ये मान लिया है कि हजरत ईसा हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो गए कुरान के मुताबिक आगे चले जी जी आगे अब क्या चलना था ये मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का क्या ताल्लुक है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और मौत से ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ सैनी साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ करते रहन हो ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ चुप कर जाओ सही बात कर रहे हैं राना साहब वो सही बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट है अगर आपने कुछ चीज सीख कर रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल वो नहीं बनता जो अभी यार साहब ने पूछा है। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ तो सिकर साहब जो सवाल कर रहा है उसको किसी ने बताना है कि तूने क्या सवाल करना है ਜਿਹੜਾ उसको करने दे सवाल क्या होता है ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ਬਈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ हमें ਸ਼ੱਕ किसी ਪੈ ने ਰਿਹਾ ਵੀ दसना ਪਤਾ कि ਨਹੀਂ तू ऐ सवाल दिलों नहीं कर कह रहे सकता हैं कि है नहीं कह रहे। ये ज्यादती है ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ राना साहब बेस्ट हाल यही है कि सैनी साहब को बात करने दी जाए वरना फिर बात होगी नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ सिकर साहब ऐसे बात नहीं है, बात सुन ले सोच रहे हो ना सिकर ये साहब जो दो बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं बेवकूफों वाली करें या अक्लमंदों वाली करें उनको करने दे चलो क्या ठीक- बात है ठीक है करो हुसैनी साहब इन्होंने एक बंदा सवाल कर रहा करो है जी बिस्मिल्लाह करो जी करो जी करो तो सिकर साहब एक बंदा अगर सवाल कर रहा है तो उसको ये बताना कि तू सवाल गलत कर रहा है
ये बात कासिम ठीक साहब, नहीं है। कासिम ਜਦੋਂ साहब, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम फौत हो गए, दूसरा बंदा कहता नहीं दिलों नहीं कह रहा। कासिम साहब एक हाँ, मिनट वो चुप तो उन्होंने सवाल कर लेने दो। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ कासिम साहब चुप करो, वाटर भाई ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ। हाँ जी करो गल। जी 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 क्या आगे चलो। बात करनी है? हाँ जी क्या बात करनी है अब? मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, कुरान के मुताबिक आगे चलें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का क्या ताल्लुक है इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर वफात पा जा गए हैं तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर बताएं ये क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा ही नहीं है। तो ये कौन है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का ज़िली नबूवत का दावा है और इमाम मेहदी का दावा है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जो कहते हैं, मतलब मैंने सारा तो नहीं पढ़ा, ये आलिम मुसलमान आलिम बताते हैं कि वो कहता है कि मैं मसीह हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं ज़िली बुरूज़ी नबी हूँ, मैं इमाम मादी हूँ। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये सारा दिन मैं सुनता रहता हूँ कि यार बताओ हजरत ईसा फौत हो गया, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुरान मजीद के मुताबिक मान रहा हूँ, उसके बाद मुझे बता दें कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से क्या ताल्लुक है? वो फौत हो गए, हजरत ईसा फौत हो गए हुए हैं, उनसे किसी का कोई ताल्लुक नहीं रहा, उनकी शरीयत भी मनसूख हो गई हुई है। वो सब कुछ वो तो चले गए ना, वो तो खत्म हो गई तो बात। मिर्जा मैं साहब का कोई ताल्लुक नहीं, मिर्जा साहब का कोई ताल्लुक नहीं हजरत ईसा से। ये कौन है फिर? मिर्जा साहब ने ज़िली नबूवत का दावा किया और इमाम मेहदी होने का दावा किया। ये कहाँ से उसने दावा लिया? कहाँ से उन्होंने दावा लिया है? हाँ जी, उन्होंने दावा जो है आप लोगों के दावा जात से आगे अपना दावा लिया है। कहाँ से लिया बताया ना। कहाँ से लिया दावा? हाँ हाँ जी, किस चीज का दावा? उनके नबूवत के दावे पे हाँ उसकी आपको नबूवत का इतराज दावा है? उसने कहाँ से लिया है? नबूवत का दावा कहाँ से लिया? हाँ जी, तो आप ये समझते हैं कि रसूल पाक आखिरी नबी हैं? मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो आपने ये दावा कहाँ से लिया? मैंने पूछा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कौन हैं? वो कहता है मैं मसीह हूँ, ईसा इब्ने मरियम हूँ, ज़िली बुरूज़ी नबी हूँ, मादी माऊद हूँ। ये कौन है? कहाँ से ये चीजें उसने ली हैं? मैं ये पूछ रहा तो हूँ। उन्होंने इस्लाम से ही ये सारी चीजें ली मैं हैं। कुरान मजीद में कौन सी आयत से ये चीजें ली हैं मुझे वो बता वाटर दें। साहब आप अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोस्त का सवाल नहीं समझ रहे। अच्छा, कह रहे हैं कहाँ से उनको ये अथॉरिटी मिली कि उन्होंने ये दावा कर दिया? क्यों जी, यही बात है? भाईजान ये वाटर भाई को बताना दे, मेहरबानी करें। नहीं, आपका सवाल यही है ना? भाईजान मेहरबानी करें, मैं सवाल पूछ लूं। जी वाटर भाई को बताने दें। जी वाटर भाई Please. को बताने दें। एक मिनट अगर आप वाटर भाई से यही पूछ रहे हैं, आपने सुनी सुनाई बातों पे बात कर रहे हैं ना। मैं वाटर भाई से ही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप टिकटॉक से सुन के एक बातें पूछ रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि वाटर भाई से ही पूछे। आपके पास ये सारी तहरीरें हैं। अगर हमारे देखिए पास- अगर दावे नहीं है तो इनकार कर देना, इसमें हवाले की क्या बात? नहीं बता दें नहीं कि भाई ऐसी बात नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये करें मैं टिकटॉक से सुना है, आपको पता नहीं है, जो वाटर भाई बता रहे हैं उस पर यकीन कर ले। मैं भाईजान अगर आपके पास कोई चीज राणा है तो साहब, लगाएं। राणा साहब अगर आपको अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, 1-2 मिनट देंगे वाटर भाई से पूछें। नहीं, मैं देता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं दिया है। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप अगर किसी को डिक्टेट करेंगे ना कि आप मुझे वाटर भाई से बात करने दें, इसका मतलब है कि आप पहले ये बता, आपने कहा कि मैंने टिकटॉक से सुना है, आपके पास सुनी सुनाई बातों पे मोमेंट यकीन नहीं करता। Contact एक तो मिनट, आपने एक भी मिनट, किया है ना। निजान भाई एक मिनट, निजान भाई 1 मिनट उसको बात करने दें, कर मैं दें। चुप था। आपने कहा कि मैंने टिकटॉक से सुना है। अगर आपने सुना है तो फिर आप वाटर भाई की बातों पे यकीन करें। अगर आपके पास कोई हवाला है तो लगाएं। मैं भाईजान पूछ लेता हूँ, मैं यकीन भी कर लेता हूँ, बात तो करने दें। नहीं, वो कर रहे थे ना। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप 2 उनसे मिनट हवाले मांग वाटर रहे हैं, आप उनसे हवाले मांग रहे हैं, आप सुनी सुनाई बातों पे बात कर राणा रहे हैं। साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, मुझे वाटर भाई से पूछने दें, मेहरबानी करें। हाँ जी, पूछें, लेकिन वाटर भाई इनसे भी हवाला पूछ ले। आपने जहाँ मेहरबानी करें, अल्लाह भला करे, मेहरबानी करें भाईजान। बिल्कुल पूछते हैं। अच्छा भाईजान, आपके अकीदे के मुताबिक नबी पाक जो है वो आखिरी नबी है, तो बराए मेहरबानी ये इसका कोई हवाला दे दें। भाईजान मैं आपको सारे हवाले देता हूँ, आप इन बेफिक्र रहें। एक चीज बताऊंगा, सिर्फ ये बता दें
कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ये फरमाते हैं कि मैं मसीह मसीह हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं ज़िल्ली बुरूज़ी नबूवत का दावा करता हूँ, या जो भी उनका दावा है, ये कौन किताब है, कौन ये सी चीज़ें है? उसने किस कहाँ से किताब ली में हैं? किस किताब में भाईजान फरमाते ये हैं? तो बताते हैं, पहले आप मुझे बताएं कि नबी पाक से पहले नबी आते थे। भाईजान अल्लाह आपका भला करे, अहमदी और मुसलमानों का झगड़ा तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ही है ना। तो भाईजान मैं उसी मौजू पे बात कर तो रहा हूँ, मैं यही आपको तो वहीं कह पे रहा हूँ लेके कि जा ये रहा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक इंसान है, नबी मुसलमान है, है, जिल्ली है, बुरूज़ी है, मसीह नबी मसीह है, है, मादी मऊद अल्लाह है, के मसीह नबी मऊद है, कौन है? अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी। ये दावा उसने कहाँ से लिया है? कुरान मजीद से अल्लाह से, लिया है उसने। अल्लाह से, अल्लाह से। बिल्कुल कुरान मजीद से लिया है। कुरान मजीद की कौन सी आयत से लिया है? बता दे, बिस्मिल्लाह करो। आप मुझे पहले, अब कुरान अब मजीद की पहले आयत की बात, अब मेरी पहले बारी आ गई, आपकी नहीं है। यार आप लड़ क्यों रहे हैं? नहीं आराम से बात करें ना। सॉरी, गलती होगी आपका और सारे मुसलमानों का ये अकीदा है कि नबी पाक सारे आखिरी नबी है। मुसलमानों को छोड़ दें। वाटर भाई एक ठहर मिनट, जाओ वाटर राणा भाई साहब, ठहर जाओ इस एक वक्त मिनट। अल्लाह यार एक आपसे मिनट बात वाटर भाई, कर रहा है। इस आपने वक्त अल्लाह पूछा यार कि आपसे बात कर आपने रहा है। पूछा है कि उन्होंने कहाँ से दावा लिया। वाटर भाई ने बता दिया कुरान से लिया। अब वो अगला कौन- सवाल वाटर भाई का, आपका नहीं है। भाईजान जी, कुरान अब आप की मुझे ये नहीं, कोई आयत तो नहीं, बताएंगे ना भाई, यहाँ से लिया है। नहीं बता, नहीं कुरान से लिया, पूरे कुरान से लिया है। अब कुरान से भाईजान दावा ये लिया बता दें, राणा साहब आपने वो चलो अगला भाई, दावा, अगला भाई सवाल मेरी वाटर भाई का होना है। मैं भाईजान हार गया हूँ, गल करन दे आप वापस जीत- राणा साहब। भाईजान मैं हार गया हूँ, आप जीत गए, बिस्मिल्लाह। नहीं ऐसी नहीं बात, ऐसी नहीं बात, मक्कर नहीं करना, मक्कर नहीं करना। मैं आपको बड़ा सादा समझता था, लेकिन आप ऐसी बात ये कर रहे भाईजान हैं सादे नहीं है, जिसके फुल तेल मार के आपके बैठे पास हैं। कोई उसकी दलील ही नहीं है। कोई बताए मुझे कुरान में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी लिखा हुआ, कौन कहता है? कोई कुरान एक से कोई आयत दे एक दे आयत दे दे मुझे, यहाँ पर जिसमें आखिरी आखिरी नबी नबी लिखा हो। हो। चलें अल्लाह यार साहब, आप जरा म्यूट कर लें थोड़ी देर। हाँ जी, देखिए मैं तो वो पता चल गया, ठीक मेरे भाई। नहीं नहीं भाई कि मेरे आप पता नहीं चल गया सर ये जी, फजान अभी साहब आए आपसे हैं। बात होएगी। अल्लाह यार साहब, कोई बात नहीं, नहीं आज मैं जरा करता हूँ, मैं राशि हाँ हाँ अच्छा राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं राणा सैनी साहब साहब की से कह रहे एक हो बात तुसी? करना चाहता हूँ, 2 मिनट की अगर इजाजत दे दो। करें। जी हुसैनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी हुसैनी साहब मौजूद हैं? नहीं वो नहीं मौजूद अभी। वो सो गए हैं। वो हमारी लड़ाई की लोरी सुन के जी। सो गए। हाँ जी फजान जी भाई। जी फरमाओ। हुसैनी भाई, जी जी आपसे सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है। जी जी करें। कुछ देर पहले आप फरमा रहे थे कि किसी का कोई रिश्तेदार, अजीज वकर, भांजा, भतीजा, बेटा, बाप या कोई भी या 5-4 साल बाद जब दूसरे मुल्क से या 10 साल बाद वापस या आता है या तो उसका इस्तकबाल बड़े शानदार तरीके से होता है। या मैं अब आपसे, और इसी तरह अगर हज़रत मसीह ने आना है वापस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या तो उनका फिर इस्तकबाल कैसा होगा? उसी की तो ज़रा- बात कर रहे थे, उसी के लिए तो हाँ ये जी। बात पेश की थी कि जो लोग मसीह की आमद का अकीदा रखते हैं, हाँ, अगर वो उनका इस अकीदे में सच्चे हैं, जी, तो उन्होंने उस इस्तकबाल की क्या तैयारी की है, किस हद तक उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित किया, ये बात कर रहे थे ना। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके लिए मेरे जहन में एक बात थी हम्म जो मैं आपसे भी कहना चाह रहा था हम्म कि जो रिश्तेदार आता है ना, जो कमाऊ पूत या या बाप या बाहर से आता है, या अगर वो आके ये ऐलान कर देना कि अब मैंने वापस नहीं जाना है, या तो वो खुशियाँ जो है ना, या वो सारी गम में तब्दील हो जाती हैं। मतलब ये होता है कि अब पैसे नहीं आने, ठीक है। ये खुशियाँ उस वक्त तक ही होती हैं जब तक उनसे कुछ फ़ायदा उनको हासिल होना होता है, राइट। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद के जो क़ाइल लोग हैं, उस वक़्त तक तो वो खुश हैं जब तक वो आते नहीं हैं या उनको खुशियाँ मनाने का। लेकिन जब वो आ गए तो उसके बाद उन्होंने क्या मनाना है, वो मतलब क्या उनको वो फ़वाइद हासिल उनके होंगे? अभी तो उम्मीद है कि ये फ़ायदे होंगे। बात ये है कि जो मसीह अलैहिस्सलाम की आमद के ख्वाहिशमंद हैं, तमन्ना रखते हैं, अकीदा रखते हैं, उसके साथ संजीदा हैं, तो उनको वो करना चाहिए जो मैंने इस्तकबाल की बात बताई है। उसमें कोई अफराद की बात नहीं है कि भाई गुलाम रसूल और भाई
शमसुद्दीन और मोहम्मद शरीफ, उनका नाम नहीं मैं ले रहा, मुसलमान और ईसाई, इवन यहूदी भी उसमें शामिल हो जाएंगे, अहमदी भी शामिल हो जाएंगे, जी जी लेकिन बतौर ख़ास ईसाई और यहूदी दो हैं जो उनके इस्तकबाल की, जिनको सही तरह से तैयारी करनी चाहिए। ईसाई और यहूदी नहीं, ईसाई और मुसलमान। यहूदी तो हाँ, मानते ईसाई नहीं। और मुसलमान ये दो हैं ज्यादा। नहीं नहीं, ईसाई और मुसलमान तो नहीं, ईसाई और मुसलमान मुसलमान, मसीही और ईसाई के आप हाँ जी, ईसाई के अलावा ईसाई, ठीक है जो भी। तो वो उनके इस्तकबाल में उनको संजीदगी दिखानी चाहिए, संजीदगी नजर आनी चाहिए अगर वाकई वो सच्चे हैं। और अगर वो ऐसा है कि जिस दिन चाचे या मामे या वालिद ने आना हो, उस दिन आदमी एयरपोर्ट जाने के बजाय घर को ताला लगा के बारबेक्यू करने के लिए किसी और पार्क में चला जाए या चिड़ियाघर देखने चला जाए, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि उसको उस बंदे के आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं। उसके लिए जैसे आए या जैसे किले बने, जैसे चोर ले गए, ये कैफियत बनती है। बाकी बातें जो कुछ अकायद में हैं सो हैं। मेरा मतलब सिर्फ इस्तकबाल मसीह से था। माशाल्लाह जी सर, बहुत अच्छा आपने मजमून समझाया सबको। जी अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के जो आ गया या जिसने आना है जी। उसका इस्तकबाल करने की इन सबको, हाँ, अगर वो जो भी जो समझ है ईमान रखता है कि उन्होंने आना है, और जो आदमी ईमान रखता है कि वो फौत हो गए हैं, उनको किसी इस्तकबाल की जरूरत ही नहीं, उनका इंतजार ही कोई नहीं। जिसको पता हो कि अब्बा जान फौत हो गए हैं, उन्होंने नहीं आना, तो उनको एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं, उनको खाने पकाने की जरूरत नहीं, उनको उनका इंतजार करने की जरूरत साहब जी। सवाल बनता है एमजी भाई एक मिनट, फलस्तीनिया ने अपने सासे इसलिए बेचे सी कि मसीह आएगा ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਦਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ठीक हो गया ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ जी तो जी सनी भाई आप करें, मैं कि- जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, जी। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਦੀ ਅੱਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸੂਲੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਲੇ ਅੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਫालतू ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵਾਲਾ ਸਕਾਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50-100 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ 100% ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਜੀ ਜੀ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਆਵਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਟੁਰ ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅੱਬਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅੱਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਬਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਸਿਰਫ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰੀ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਅੱਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਅੱਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਮਸੀਲੇ ਅੱਬਾ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਮਸੀਲੇ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਾਸਮ ਨੂੰ, ਰੋਕਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀਏ ਤੇ ਚੋ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਮਡੀਏ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮਡੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਐਮਡੀਏ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਇੱਕ ਬਣਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਗਾਏ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੂ ਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ? ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ? ਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਨੋਸਟਿਕ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ? ਕੀ ਅਕੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਤੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਦੇਖੋ, ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮਾਨ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜपूत साहब, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ गुजारिश है, ਗਏ। मेरी गुजारिश सुन लो पहले। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੋਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਗ ਨਾਸ ਤੇ ਟਿਕ ਟਾਕ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਅਗ नास ਤੇ पत्नी, मैंने पहले समझाओ क्या होता भाईजान है। वो सिर्फ अल्लाह मियाँ को मानते हैं फैजान भाई, सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं, नबियों को नहीं मानते, मजहबों को नहीं मानते। वाटर मैं साहब, ऐसी पावर को मानता हूँ जो जमाना मकान से बाहर हो, टाइम और स्पेस से बाहर हो। अच्छा ऐसी पावर है अच्छा, ओके भी पावर है, अल्लाह। ठीक है, इन्नी गल ते मैं भी मनना वा। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। नहीं काफर ते मैं फौरी तौर पे नहीं कह रहा, जाहिर है ओदा अकीदा फैसला करेगा ना कि वो मुसलमान है। फजान भाई जी जी आप कौन से मुसलमान हैं? भाई मुसलमान एक ही होता है ना। नहीं होता। आपने पूछा मेरा अकीदा, आपने कहा मैं गैर मुस्लिम हूँ, अग्नास्टिक हूँ। मैंने देखिए नहीं मैं कहा। मुसलमान हूँ और ख़त्म नबूवत का मानने वाला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने ओके वाला ओके 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 मुसलमान। यही रुक जाए। इस्लाम के 5 अरकान बताए क्या है? मतलब तुसी इथे इम्तिहान लेना मेरा है? नहीं इम्तिहान नहीं लेना। इस तो बाद की होएगा फिर आगे दसो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। चलो मैं दस कलमा नमाज रोजा हज नहीं ज़कात। मैं ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं नहीं मैं हूं दस देना ना। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ये ਦਿਓ। मुसलमान तरीब ही बदल देती है। गैर जरूरी चीज ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ फजान भाई ऐसे नहीं आई लव यू, यू आर माई ब्रदर। कोई ऐसा नहीं कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਫਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਲਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੂਲ- ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗੱਲ ਲਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੂਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਾਗਾ, ਰਾਈਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ। ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਛੋਟੇ। हाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, अच्छा कि मैं खातमुन नबिय्यीन हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाँ जी ठीक है, ठीक हो गया। खातमुन नबिय्यीन ते खत्म नबूवत च कोई है आपस में मुमासलत, कोई हाँ जी लिंक है? नहीं नहीं नो ये सब लेकिन कनाडा का बॉर्डर जो है वो सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पे वैंकूवर साइड, नॉट ऑन टोरंटो, द अदर साइड। यस लेकिन क्या मिलने से पहले ही लोग इतना कुछ हो जाता है तो मैं कहती हूँ रहना ही दें तो अच्छा ही है।
बस मुझसे नहीं ना बोले। पता है मैं एक गलती हुई है, वो मैं आपको I बाद get में it, हाँ। बताऊंगी। हाँ हाँ, मैंने किसी इंसान को शामिल कर लिया था उसमें ना। हाईलाइट कर दिया था, ये कह रही हैं आप? हाँ मैंने बस मुझसे वो गलती हुई, हम्म। तो इंशाल्लाह वो लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं I होगी। think you was talking about the last time when I was talking with you. Uzair Brock, right? उस दिन की बात कर रहे हैं, नहीं right? नहीं 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 अच्छा, नहीं। something else. Okay, हाँ okay, okay. समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। कोई बात नहीं है, जिंदगी में जब तक आप लोगों को ऐड नहीं करते तो पता कैसे चलता है रियल और फेक का। ये भी तो एक रियलिटी है ना जिंदगी की। आप ना अपनों से सीखते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके आप करीब होते हो, समथिंग एल्स नहीं होते वो। समझ गई मैं। हाँ वो आपके बहुत अपने होते हैं जो आपको सबक देके जाते हैं। वही है ना, जिंदगी में या तो सबक मिल जाता है या तो कुछ सीख लेते हैं। दो ही चीजें हैं। चलो ऐसा कह लो, ऐसा कह लो। लेकिन मैंने बहुत सीखा है अपनी जिंदगी। और आपको एक बात बताऊं कि माँ बाप, दुनिया वो तरबियत नहीं देती जो ये दुनिया देती है। हाय हाय, क्या कह दिया तुमने। ये सच माँ बाप की तरबियत से तो आपको वो भी नहीं मिलता जो दुनिया की ठोकरों से मिल जाता है। बिल्कुल। ये जो दुनिया आपको ठोकरे देती है ना, हम हमें लगता है जब हमें माँ असल बाप, जिंदगी तो तब पता चलती है कि ओ, हमें जब माँ इसे बाप जिंदगी कहते हमारे हैं। करीबी हमारे दोस्त हमें समझाते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, ये गलत है, हम कहते हैं चलो चलो जाओ तुम काम करो अपना, वो ऐसा नहीं है या वो आई ऐसी एग्री विद नहीं यू। है। जब तक इंसान अपने ऑन एक्सपीरियंस के साथ नहीं सीखता ना, जब तक वो ठोकर नहीं खाता, एग्जैक्टली तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। एग्जैक्टली आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तो कोई शक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ही सीखा है। यप, हमने मैं- भी कुछ ऐसे ही सीखा है। एक बात कहूँ मैं विश, मुझे अपने जैसा यहाँ पे कोई नहीं मिला, पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला। यू नो व्हाट, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने जैसे लोग, अपने जैसा इंसान हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। दिस इज आवर बिग मिस्टेक। जबकि वो कहीं नहीं होता, आपके अंदर खुद होता है, आप खुद मतलब होते हो। यार अपनी जात को कोई भी नहीं मुनफी होता। कर देना, किसी के लिए मर मिट जाना और बगैर किसी मतलब के, ये बहुत बड़ी बात होती है। वही ना, कहते हैं कि उनसे पूछो कदर हमारी जो लोग दुआओं में हमें मांगते थे, और तुम्हें तो बिना मांगे ही मिल गए थे, तो तुमने कोई कदर ही ना की। कदर ही नहीं बिल्कुल की। ऐसा ही है, ऐसा तो ही ये है। सिर्फ उन्हीं लोगों को बताते हैं। तकलीफों से अगर कुछ चीज आप हासिल करते हैं ना तो आपको उसकी कदर बहुत होती है, क्योंकि आपकी स्ट्रगलिंग बहुत आती है इसके अंदर। आपको बात खुदा सारी के चीजें लिए मैं अर्ज है कि हम बहुत बेगैरत हैं, हमें तब भी अकल नहीं आती। ऐसा होता है कि गलतियां इस तरह इंसान कर बैठता है, कोई शक नहीं, आप अकेली नहीं है, मेरा ख्याल है हर दूसरा हमें बंदा तब भी अकल नहीं आती। ये गलती कर बैठता है। पता है क्या, इंसान ना हर चीज पे काबू कर सकता है, हर चीज पे कंट्रोल कर सकता है। अगर वो बहुत खुदगर्ज हो कहते जाए। हैं ना, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हम इंसानों ने क्रिएट की हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें क्रिएट नहीं किया। बट एक चीज पे आके हम बहुत बुरी मार खा जाते हैं, दिल के हाथों। क्योंकि दिल जो है ना, दिल जब किसी पे आ जाता है या कुछ होता है ना, तो वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको पता भी होता है इट्स नॉट राइट फॉर यू, फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर होते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब इस जुनून और इस कैफियत तक आप पहुंच जाते हैं ना, उस लेवल तक जब आप ठोकर खाते हैं ना, देन यू रियलाइज, तब आपको रियलाइज होता है कि ओ, नहीं मैंने नहीं, क्या नहीं, किया। आयुष, तब भी ऐसा नहीं होता। वक्त के क्या तौर पे हम किया? कहते हैं कि ओहो हमने क्या किया, लेकिन यकीन करें वही धोखा दोबारा सामने आए ना तो हम दोबारा गधे बन हाँ, ऑफ जाते हैं। कोर्स, फिर हम फिर पागल बन जाते हैं। ये बात सच है। आई एग्री विद यू। वेलकम एवरीवन। हाँ वो हम फिर बन जाते हैं पागल। बिल्कुल। ये बात तो आपकी सच है। धोखा खाए हुए पे भी हम कहते हैं चल यार एक धोखा और सही, शायद ये ऐसा ना हो या ऐसी ना हो। चांस तो लेना पड़ता है ना लाइफ में। हाँ, ले लेते हैं चांस, बिकॉज यही जिंदगी है।
वो कहता बात चल तो आना दिल नहीं। मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, सही है, लोग सही है। लुटेरे। लेकिन फिर भी वो दिल जो है ना बाज नहीं आता, क्या करें। वो एक और सॉन्ग था ना, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में मर जाते हैं। मर जाते हैं। ये जो चीज होती है ना, इंसान को इसके बिना चैन भी नहीं आता कि क्या हम ऐसे बन चुके हैं, या पता नहीं, आई डोंट नो, दुनिया ने ऐसा बना दिया, वक्त ने ऐसा बना दिया। नहीं ना, दुनिया ने चोट बनाया। खाए हुए पे भी कहते हैं नहीं चल नहीं ना, और मैं भी चोट बात खा ले यही दिल। है, बात यही है। और- देखो, हम कुरान पढ़ें, हम अपने आप को देखें, हम किसी भी तरफ जाएं, हमें एक सबक मिलता है, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते। हम अपने Of दिल को course. सुनते हैं, हम अपनी देख मर्जी के करना भी। चाहते हैं। सीख के भी नहीं सीख सकते। बिल्कुल, हकीकत यही है। मडोना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आप इस बात में ऐड करना चाहेंगी? बहुत कुछ ऐड कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐड बिस्मिल्लाह। करें मडोना जी। मेरे अपना बिस्मिल्लाह एक्सपीरियंस के करें। अलावा दुनिया की इतने एक्सपीरियंस है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो हैरान होती लोगों पे, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो हैरान होती लोगों पे कि करना क्या चाह रहे हैं, और सामने लोग देख के चीज कहते हैं कि हमने हाँ कुएं में गिरना ही गिरना है, हम देख लेंगे, हम सही है। संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। जैसे लोग कुएं में गिरने वाले लोग देखे मैंने लाइफ में, कहते नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। चीफ कभी ना कभी तो सही होगा ना यार। अच्छा, इसकी इतना वजह क्या है? इसकी वजह क्या है मैडोना जी? वो दिल के हाथों में स्थिति, और क्या। और एक क्या कहते हैं, अपनायत मिल जाए, मतलब एक टाइम गुजारने का, वक्त गुजारने का, लाइक अपनायत हो जाती है यार, यही चीज है आखिरी। वही सोचते हैं आखिरी यही चीज है शायद। हम दर्द हालांकि कहते अच्छा हैं बेटर उसे। प्लान मिल वो सकते हैं कहते हैं लाइफ में। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं होते ना, दर्द आपसे नहीं मिलता। हम तो हमदर्द नहीं कहते हैं, बाद में मिलता। हमें लोग दुख दे के चले जाते हैं लोगों का। मैंने ये देखा औरतों की, अपना लेडीज का। यार मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कई कई जगह ना, मेडोना, कैन यू बिलीव इट और नॉट, हाँ, मेरा कसूर नहीं भी होता फिर भी मुझे न जाने लोग कितना बुरा भला कह देते हैं, और मैं इतना सब्र करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ठीक है यार आपने मुझ पे ये तोहमत लगानी थी ना, लगा दी, दिस इज यू एंड बिटवीन यू अल्लाह। लेकिन किसी पे झूठी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, यही बात, गुनाह होता है। यही बात है, यही बात है, बिल्कुल सही है। यकीन करो कि इवन कि मैं मैं किसी की मैं अच्छी आपकी दोस्त जब थी, पिक्चर्स देखती तो हूँ ना, लोगों ने काफी चीजें बातें की कि आप इतनी अच्छी दोस्त हैं तो क्या हैं, आप इसकी माँ लगती हैं, आप इसकी बहन लगती हैं, आप इसकी बीवी लगती हैं। मैंने कहा अल्लाह माफी दे दे, कुछ तो सब्र करो, हौसला तो करो। कोई अच्छा दोस्त भी तो होता है, फैमिली पर्सन टाइप का लगता है। ऐसे ही है बिल्कुल। पूरा मैंने ग्रुप छोड़े हुए। मैं तो क्या ना लेवल देखा ना कुछ देखा, मैंने पूरे ग्रुप छोड़े हुए। मैं वो बंदी हूँ। ये मैंने ऐसे नहीं अपने बढ़ाए हुए मामला, मुझे दिल ही नहीं करता रहा लोगों को मुंह लगाने का। अपने काम से मैंने बिजी कर लिया अपना कॉल। पहले मैंने 2 महीने क्योंकि आपको फिर दिल नहीं पहले मैंने 2 महीने क्योंकि आपको फिर दिल नहीं करता, आपको दुनिया की हकीकत, रियलिटी पता लग जाने यार मैंने जब पता इतना लगने लगती है ना, फिर आप इतना अवेयर हो साथ जाते दिया हो तो। हाँ, और मैंने अपने कार्ड चेक किए थे कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। मैं बार बार मेरे कार्ड में इंडिकेट हो। फिर मैंने एकदम साइड पकड़ी। मैंने कहा नहीं, जब एक दफा हो गया ना, देख लिया मेरे कार्ड्स, पीछे हट जाओ। फिर मैं पीछे हट गई। मैंने हालांकि देख रही हूँ कि नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, दुनिया बुराइयां कर रही, मैं कह रही हूँ नहीं अच्छा। मैंने पूरा साथ दिया। लेकिन कुछ लोग होते ही खसलतन ऐसे खराब है। उसमें बात एज सिर्फ मैटर ना नहीं करती कि तरबियत छोटा की है, ये बड़ा नहीं, है। बात सिर्फ तरबियत और खानदान की होती है। नहीं यार, कुछ तरबियत लोग भी खानदान को खराब मत थे, लेकर आओ। कुछ और कुछ अपने ही वक्त दिमाग भी खराब होता है। खराब था, क्या कह रही कुछ हैं आप? किस्मत का भी एक कसूर मिनट, एक था। मिनट, मैं मैं भी क्या कह रही हूँ? तरबियत को ना लेके ये लोग होते ही नहीं ना नहीं यार, समझो नहीं यार। नहीं, मैं एग्री नहीं करती आपके साथ। यार कुछ जगहों पे होता होगा फैमिली का, लेकिन कुछ जगहों पे ना ये लोग खुद ना दुनिया से ना पता नहीं नहीं आगे वो लोग मेरी होते हैं। जान, ऐसा नहीं है। भाई उनकी अपनी प्रेडिक्शंस हैं, आपकी अपनी प्रेडिक्शंस हैं। हाँ, या ऐसा नहीं है। पर लेकिन मैं बताऊं, देखो- तरबियत जो होती है ना, तरबियत से फर्क नहीं पड़ता। इंसान जो होता है ना, वो खुद ऐसे ही होता है। गाँव गोट वाली खुद ऐसे ही तरबियत होता है। गाँव गोट वाली तरबियत हो और वो बाहर के मुल्कों में रह रहे हो, वो दो चीज डिफरेंट हो जाती हैं। सुन तो लो ना। अच्छा चलें, आप एक्सप्लेनेशन देंगे ना, आप बताएं। देखो, एक तो होता है ना, चलो जी, हम शहर वाले माँ बाप को कंसिडर नहीं करते, हम गांव वाले माँ बाप को कंसिडर करते हैं। मैं कहती हूँ गांव वाले माँ बाप शहर वाले माँ बाप से बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। वो तो औलाद को बहुत अगर लड़का हो तो बहुत प्रायोरिटी देते हैं,
बहुत प्रायोरिटी देते हैं। मानती है ना आप ये सब सही बात है। कि अगर बेटा हो तो? देखिए प्रायोरिटी तो गांव के अलावा But this मिडिल is क्लास में a भी different thing. सिटी में हाँ, भी this दी is a जा different सकती thing. है, हाँ, तो अगर ऐसा नहीं मतलब है। अगर इस चीज को डिफरेंशिएट करें कि लड़का लड़की अगर लेकिन ये पता है क्या हाँ। हिना, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रही हो इस चीज को। देखो, व्हाट पेरेंट्स डू फॉर द किड्स, आप अपने बच्चों के लिए जो करते हो, उनको ग्रो अप करते हो, रेस करते हो, चाहे लड़के को वैल्यू देते हो या लड़की को देते हो, दिस इज लाइक प्रायोरिटीज, यू नो, ये आपकी प्रायोरिटीज हैं कि आप उन्हें कैसे दे रहे हो। एज अ पेरेंट्स ये हर एक इंसान के अंदर होता है, बिल्कुल। लेकिन जो तरबियत होती है ना, वो तरबियत माँ बाप की नहीं होती है। अगर कोई बंदा किसी बंदी को गलत मिसट्रीट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, वो उसकी माँ की तरबियत नहीं है, वो उसकी खसलत है, वो उसकी फितरत है। उसकी खसलत और चाहे फितरत अगर कैसे वो आती बंदी है? उसकी अगर वो फितरत बंदी और अगर वो खसलत बंदी इस कैसे तरीके आती है? मुझे वो तो सिर्फ ये गैदरिंग बता से दो। आएगी ना, कि वो किस गैदरिंग में उठ रहा है बैठ रहा है, हाँ, ये भी तो है ना। खसलत की बात मैं भी सीखी, देखो बिल्कुल एक ठीक ही मिनट है। एक मिनट एक मिनट, मैं आपकी क्या आपकी आप अपनी बात सराउंडिंग से सीखते हो, नहीं, अपने लोगों के बीच में। एक मडोना मिनट, मेरी वेलकम। बात सुनो। कैनेडियन देखो कैसे आएगी? अच्छा चले एक लड़का ले लें, वो हर एक बंदी को वाह कहे मडोना, कि ये अगर फंस जाती है ये अच्छा सामने आ जाए, ओहो ये तो 2 नंबर है, ये तो बहुत बुरी है, मैं ये चीज का यार, वो एक चीज मेंटालिटी है। जैसे है ना, जिसको 2 नंबर को तो बाकी कुछ लोग 2 नंबर भी होते हैं। वो खुद होते हैं, मैं ये मान वो सकती खुद हूँ। होते हैं कुछ लोग यार। हाँ, मगर मैं आपको है ना आपको एक बात बताऊं कि इसमें माँ बाप की तरबियत नहीं होती। हाँ, अक्सर हम लड़कियां औरतें मैं ना यही मिस्टेक कर जाती हैं, 100% आपसे हम एग्री यही करती हूँ मिस्टेक कर महवेश। जाते हैं कि मैं हमें बैठो लगता है कि अपनी ये बात लेके बैठी नहीं। रहो। एक मिनट मेरी बात प्लीज कंप्लीट राफे होने दो। ओके डार्लिंग। हमें ये लग रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ना, इसकी माँ की बोली बोल रहा है, अपनी बहनों की बोली बोल रहा है। या ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। कोई भी इंसान जब तक किसी को कुछ नहीं बोलता, जब तक वो खुद नहीं चाह रहा होता, वो प्रिटेंड आपके सामने जरूर कर देता है, हाँ कि शायद मैं अपनी माँ के फेवर में बोल रहा हूँ या अपनी फैमिली की दोहराई हुई बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन चीज कुछ और होती है, और हम उस चीज को समझने के बजाय ना, हम उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसको हम मिस क्रिएट कर देते हैं, अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक जो चीज फसाद की जो जड़ होती है ना, अगर आपके मियाँ बीवी में कोई लड़ाई है, आप दोनों आपस में डिस्कस करो, फैमिली को बीच में लाओ ही मत। बिल्कुल ऐसे ये ही। जो लोग फैमिलियों को नहीं, ताने एक- देते हैं ना, ये जो एक फैमिलियों को ताने देते हैं, पॉइंट और रेज करना चाहूंगी, एक पॉइंट और रेज करना चाहूंगी यहाँ पे। जी जी जब जो है ना वो अरेंज मैरिज होती है, माँ बाप ने पसंद किया या खानदान ने पसंद किया, शादी हो गई, ठीक है। लड़के की कुछ आदतें लड़की को पसंद नहीं आ रही, लड़की की कुछ आदतें लड़के को पसंद नहीं आ रही, उन दोनों का गुजारा नहीं हो रहा। लड़की अपने घर वालों को कंप्लेन करती है कि लड़का ऐसे ऐसे सलूक कर रहा है मेरे साथ, लेकिन लड़की वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हें गुजारा करना है, बर्दाश्त करो, तुम्हें ये चीज लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट कि ना, अभी हम लोग बैठे हैं 2026 में बैठे हुए हैं हम लोग, अब ये सारी बातें। सॉरी महविश, अभी भी ऐसा ही होता है। अब नहीं है ऐसे, सॉरी, अब नहीं मैं होता। टोटली आप लोगों से डिसएग्री करती हूँ, अभी भी ऐसा ही होता है। देखो अभी मैं भी आपको ऐसा एक ही बात बताऊं है ना, जब मैं शादी हुई थी ना, मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी शादी की थी, राइट, उनको ये मालूम नहीं था व्हाट मेरे नसीब में क्या है, इवन तो मुझे खुद भी नहीं पता था। बिल्कुल, आपका नसीब आप नहीं बदल सकते, बेशक। चाहे आप अपनी फैमिलीज के पास अपनी प्रॉब्लम उठा के ले जाएं, या किसी पीर बाबा के पास ले जाएं, या आप कहीं भी ले जाएं, इवन तो आप अपने खुदा के पास भी क्यों ना ले 100% जाएं, agree with you. क्योंकि अगर आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा, उसे आप बेशक। बदल नहीं सकते। बेशक, बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई थी, आई डिडंट नो अबाउट दैट कि आई एम गोना बी डिवोर्स विद दिस गाय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, राइट। तो ये सारी यहीं पर चीजें एक जो बात, ना, ये एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट।
लेकिन मैं एक बात यहीं पर ही इंक्लूड करना चाहूंगी कि देखो, किसी को भी नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होना है रिश्ते के साथ। समझदारी यही होती है, एक जो, यकीन करो ये मैंने अपने ऊपर सहा है महविश, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही, मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी गुजरा है, मेरी कुछ कजन्स के साथ भी ये चीजें हुई हैं कि माँ बाप ने प्रेशर डाला, नहीं 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 भाई तुम यहाँ नहीं आ सकती। मतलब माँ बाप को ना अपनी इज्जत की फिक्र, मतलब चाहे मरे, चाहे पिटे, चाहे जलील हों, बट अपने नहीं, घर वो में बात रहें। आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक मिनट, I agree that. लेट मी कंप्लीट, ठीक है ना। पार्किंग का है। तो मैंने ये चीज देखी है और मैंने सही भी है ये चीज अपने ऊपर भी, और मैंने दूसरों के ऊपर भी ये देखी लेना है पड़ेगा। कि जो माँ बाप होते हैं ना, सबसे बड़े गुनाहगार वो अगर होते मैं हैं। इसके सामने यूं ही लगा दूं, एक मिनट, मैं आप लोगों को म्यूट लगा रही हूँ, इनको दोनों को पता नहीं है शायद। चले आप बात करें, सॉरी हिना। सबसे गुनाहगार हमारे माँ बाप होते हैं महविश। वो डर जाते हैं कि हमारी बेटी तलाक लेके आ गई, ओहो इसको तो कोई अपनाने वाला नहीं होगा, ओहो हम दुनिया को जवाब क्या देंगे। अगर उसके बच्चे हुए तो हमारे जो अगर भाई हुए वो हमें अपनाएंगे नहीं, हमारी भाभियां हमें हमारे साथ बनाएंगी। यकीन करो माँ बाप ऐसा ही करते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट हिना, आप अमेरिका में बैठी हैं, मैं ठीक है, अभी हूँ आप ना, इस कंट्री मैं में अभी हूँ बैठी हो यार, ना। प्लीज मैं अभी हूँ, मुझे 3 साल हुए हैं अमेरिका में, मैं अपनी पूरी जिंदगी इट पाकिस्तान डजंट में गुजार मैटर, के आई हूँ। इट डजंट मैटर, आप बहुत अच्छी कंट्री में बैठी हैं। इट डजंट मैटर आपका लीगल स्टेटस क्या है क्या नहीं है, इट डज रियली मैटर। आप बहुत एक अच्छी कंट्री में बैठी हैं जहां पे आप अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हैं, आप लड़ सकती हैं, आप बात कर सकती हैं। यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट योर फैमिली। मैं जब मेरी सेपरेशन हुई थी ना, इवन दो आज तक आई नेवर टॉक अबाउट माई फैमिली टू सपोर्ट मी फॉर जीरो, नथिंग, कभी भी नहीं। अपनी और पाकिस्तान में ना कर मैं सकती कभी, थी। ना मैं अपने दुख अपनी तकलीफें कभी उनसे शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरे दुख, मेरी तकलीफें, मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी हैं। मैं कभी भी किसी से, मैं अपनी माँ तक, माँ का रिश्ता कितना क्लोज होता है, आई मैं नेवर से उसको भी दैट टू नहीं माई मानती, मॉम। मैं उसको भी मैंने नहीं कभी भी मानती, नहीं, मैं उस रिश्ते को भी नहीं मानती, नहीं देखें, मैं किसी भी रिश्ते वो को नहीं मानती महविश, ना मानो बहन है ना, भाई। मानो या ना मानो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपकी हाँ मैं फीलिंग्स नहीं टोटली, मानती, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकती हूँ, मैं नहीं मानती। मुझे पता है, आजकल की लेकिन माएँ, मतलब मेरे बाबा तो जब मैं 6 साल की ही उनकी तभी डेथ हो गई थी। मुझे तो नहीं पता बाबा का प्यार क्या होता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है, मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, मैं 6 साल यू की नो थी। व्हाट, आपको मैं एक बात बताऊं, हैव यू स्टडी अबाउट दैट फादर हंगर्स? आपने कभी स्टडी की है इस चीज पे? आप गूगल पे स्टडी कीजिएगा, व्हाट्स फादर मैं जब हंगर्स। भी देखती जब हूँ आप ना, करोगी ना, आपको पता चलेगा व्हाट इज दैट। मैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो अरे जाएंगी। मेरी जान, मैं देखती हूँ ना, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जैस्मिन ओके, वेलकम। अच्छा, मैं बहुत वर्स उसमें जाऊं ना, तो मैं कभी-कभी जब मैं फादर्स की वो प्रायोरिटीज, वो लव और वो सारी चीजें देखती हूँ ना, मेरी कभी-कभी ये ख्वाहिश होती है यार काश मेरी मम्मा ना होती, मेरे बाबा होते। मेरे दिल में ये भी ख्याल यार आता है। आपको है ना, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता है व्हाट्स फादर हंगर्स? किसी को पता है कि फादर हंगर्स क्या होता है? आप में से किसी को पता है मुझे पता है, क्या जो होता है? मैंने चले देखा बताएं है, थोड़ा सा, बताएं। औलाद, औलाद की खुशी, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है ना, वो बाप से ज्यादा, शायद माँ से भी ज्यादा बाप में होती है। देखिए, फादर हंगर्स जो होता है ना, इट्स लाइक दैट कि जब आप एज अ चाइल्डहुड में होते हो, आप बच्चे होते हो ना, और जैसे आप बता रही हैं कि आप बहुत यंग एज में थी और आपके डैड, आप ही इज पास्ड अवे, राइट? मैं तो जब चाइल्ड थी उस वक्त। एग्जैक्टली तो जब आपको बाप का प्यार नहीं मिलता ना, तो आप वो एज अ मैन दूसरों में चीजें ढूंढती हैं, बाप का प्यार, बाप की चीजें। जब आपको अपने फैमिली से, अपने डैड से नहीं मिला ना, तो वहाँ आप एक एज अ दूसरे मैन में ढूंढ रही होती हैं वो चीजें। मे बी इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर लाइक ब्रदर, और आपका बेटा
कोई किसी में भी ये सारी चीजें ढूंढती हो, क्योंकि आपको वो एक रिस्पेक्ट और एक प्यार जो एक आदमी से एक बेटी को चाहिए होता है या एक औरत को कहने आप, वो आप दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द फादर हंगर्स। जब आपको बचपन से ही बाप का प्यार नहीं मिलता, इग्नोरेंस मिलती है, कुछ लोगों को तो बाप प्यार करते ही नहीं है बेटियों को, ठीक है। थोड़ा स्टडी करें और मैं एक आप इन बात चीजों कहूँ, को पढ़ेंगे ना, मैं एक बात आपको कहूँ, काफी हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मैं एक बात है ना। कहूँ महविश, मेरे जो हस्बैंड है ना, हम्म। वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बाप भी हैं। मैं जो भी कहूँ वो मेरी हर बात पे लब्बैक कहते हैं। मैं कुछ भी करूं, मेरी जो भी मर्जी हो, वो किसी बात पे इनकार ही नहीं करते महविश। वो इतना प्यार करते हैं मुझसे। तो मेरी नहीं, जिंदगी I've की seen it and जितनी you're भी so lucky, मजबूरियां हैं ना, माशाल्लाह। जितनी भी महरूमियां, सॉरी मजबूरियां कह रही हूँ, महरूमियां हैं, वो उन्होंने दूर कर दी हैं। यकीन करें, फिर वो आप इतने तो फिर अजीम आप इतने इंसान दुखी क्यों है। हैं? तो फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महविश नहीं, दुख पता क्या होता जी है? मैडोना, दुख महविश वो बहन एंट्री भाइयों का का रखा है माँ मेरा, बाप का होता ही होता है। कौन कहा है? हम एंट्री इंसान का है रखा ना, है हम मेरा। फरिश्ते नहीं है। सॉरी मैडोना, आई डिडंट गेट दैट। राजा प्लीज, आपकी तरफ से शोर आया पीछे से, एक ओके मिनट ओके, ठहरिएगा। क्या कह रही है मैडोना? मैंने कहा मैं हैंड्री का रखा है यार मेरा, कहाँ रखा है मुझे बताओ, वो मुझे क्या साइड पे रखा था, बताओ। तुम्हारे साइड पे पास में रखा था, उस साइड पे देखो जरा, पलट के देखो। हाँ पीछे ही पड़ा है मेरे। अच्छा देना पड़ा, पास करना यार। करती हूँ, ले लो। हाँ सही है। माशाल्लाह। और बताओ। मैंने लाइव जाना है ना, मैं अपना मूड अच्छा रखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा रखो, रखना गुड भी वाइब्स, चाहिए। अच्छा, गुड वाइब्स। अच्छा हाँ ये हाँ जो भाई हम हिना तो जी हैं, भाई वो हैं, इनकी मम्मी डैडी सेकंड टाइप के मैरिज लोग हैं, है? भाई साफ सी बात है। हाँ मैं तो मम्मी डैडी हाँ, टाइप का करता हूँ। मैं भी। हाँ हेलो, राजा बोले, क्या कह रहे थे? सॉरी। मैं पूछ रहा था ये जो हिना जी हैं, इनकी ये सेकंड मैरिज है? आई थिंक सो, क्योंकि वो कह रही हैं कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो ऑफ कोर्स तो कुड बी अगर सेकंड। नहीं, वो अगर कह रही हैं इनको सब कुछ मिल गया, ठीक है, बाप भाई सब कुछ मिल गया, सारी खुशियां मिल गई, फिर कोई तो फिर कंप्लेन तो नहीं होनी इनको चाहिए ऑफ कोर्स। फिर कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, फिर ये दुखी हाँ क्यों सही बात है, बंदा पुराने का भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मेरी ये मैं सेकंड इससे मैरिज सुन रहा नहीं हूँ। है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। फर्स्ट है मेरी जी बिल्कुल। फर्स्ट और मैरिज है। मुझे दुख पता क्या है? क्या अपनी माँ का, अपनी बहन भाइयों क्या का, क्या कहते हैं? अपने सगे रिश्तों का। और मैं इस चीज यार पे रिश्ते शर्मिंदा तो, रिश्तों पे हूँ। जाओगे तो रिश्ते तो अरे आजकल मेरी पानी है, जान, खून हो अरे गए, कोई मेरी रिश्ता जान, विश्ता नहीं है। नहीं कायदे आजम नहीं, डॉलर को सलाम है। गाइस वो मैं तो जा है। रही हूँ महबूब अपने कदमों के नीचे करने। अगर आप हो गई अपने नहीं नहीं मेरा महबूब मेरे आप कदमों के बीच में, मैं जा रही हूँ। विडोरा। बस मेरा महबूब मेरा हाथ में होना चाहिए, कहीं और गया बताती हूँ फिर मैं ऐसा करूंगी, आप चलो ठीक करेंगे है। 6 फुटियों को नीचे लगा दूंगी। अरे महबूब कदमों में है, लेकिन माँ बाप के ऊपर, रिश्तों के ऊपर नादामी है उनको, थोड़ी सी रिश्तों को अरे लेके कट्टा वो करता रहे, अपना अपना जज्बा खुद का हिसाब किताब हम थोड़ी संभालने के लिए बैठे हैं किसी को। कट्टा करे नहीं करने सही है, कबर सही नहीं, में फिर जाना भी अपना दिल सुनो। ये दुखता सही है, बहुत दुखता है, दिल दुखता है, बहुत दिल बात दुखता किया है, करें मैं ना, तो दिल को दुखता है और तो दुखाओ, दिल पे उजैर भाई की पत्थर मार ग्रुप दो पे उठा जाओ। के। दिल सच के दुखता खराब है किया तो करें, शहबाज इंशाल्लाह भाई दिल की दुखना खत्म ग्रुप हो पे जाएगा। जाओ। मैं कहती हूँ दिल आपकी दुखता सोच से है। ज्यादा करती हूँ। बस आप मेरी सोच से ज्यादा आप नहीं कर सकती, मैं बहुत आपकी सोच से कहीं ज्यादा कर सकती हूँ, मेरे और ख्याल से आप करती मेरे हूँ। साथ नहीं करती अरे होंगी। मेरी अच्छा जान, आपको कभी है ना, मैं प्राइवेट में आके बताऊं, अब पूछ लें, मैडोना, कभी मुझसे मैडोना जो है ना, प्राइवेट में आके पूछेंगी ना, मैं आपको डिटेल बता दूंगी, आप कहोगी कि मेरी जान नहीं। मैं वो बंदी हूँ अब जिसने 10 लाख का तक का मेरा अपना बनवाया हुआ शरारा मैं जाके मजार पे लेके आई, मैं वो बंदी हूँ, मुझे ना बस कहें कि आप कितना बस करती हैं। बस इससे इतना ज्यादा ही, मेरा हिसाब किताब है, लंगर हर रोज का इतना चलता है ही, हमारा। बस। मैं पर गल्फ यार मेरी मैं बात गल्फ में सुने, आप बस लोग हिना में प्लीज गल्फ में गाइस हूँ, फाइट नहीं हिना में करनी। गल्फ में हूँ। नहीं सुनो फाइट नहीं कर रहे मैडोना है मेरी ना, जान, मैविश, एक मिनट में हम फाइट यार नहीं कर आप रहे, लोग पता है अपनी नेकियों मैविश को हम गवा रहे हो फाइट कह के, नहीं डोंट कर डोंट रहे, डोंट हम डू दैट। फाइट नहीं ये कर सीन नहीं है। अपनी हिना बोले, नेकियां हिना मत बोले, गवाओ। हिना नहीं क्या कहती मैविश, हैं? एक मिनट, हम एक मिनट, आप इधर ऐसी तो बंदी हो ये कि सीन खुद है। किराए के घर में रहो और अपनों को
घर बना के दो अपने पैसों से। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे यार ज्यादा ही है, ये ज्यादा हिसाब किताब है इनका। हाँ हम तो मम्मी डैडी टाइप के मैं यार, वही बात कर रही हूँ। हमें तो हर चीज मिली है, मैं बनाना पीछे में रही हूँ माशाल्लाह और मैंने अपनों को घर बना के दिया है जहाँ पे या मैं मेरी समझ सकती कोई हूँ। जगह नहीं थी। ए मैं भी, जिसका मसला दूसरा, ये बहुत सख्ती में आई हुई है। यही तो मैं तुम्हें हाँ। बता रही हूँ यार, हिना का थोड़ा मैं मसला समझ कुछ रही हूँ, मैं और है। समझ रही हूँ, ये सेल्फ मेड वाली बंदी है। इनको दम करें हाँ। थोड़ा। सही सही मैं मैं ऐसे मैं मैं नहीं यकीन कर सकती, करें, मैं मैं नहीं कर आपको, सकती। मेरा अल्लाह माफ करे, मुझे आपको हिना रिक्रिएट मेरी करने का कोई हिना मकसद मेरी एक नहीं बात है। सुनेंगी? हिना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर जी सकती बहुत हूँ? अच्छा प्लीज। करती है माशाल्लाह। ये मैडोना है ना, आप इनको फॉलो कर लें, ये बहुत अच्छी मतलब मैं कर थेरोकाइट रही हूँ, रीडिंग भी मैं कर करती रही हैं। हूँ इनको फॉलो। इनकी इनसे इनकी जो दम मॉम करवाएं। है ना, इनकी जो वालदा है, वो आपको कुछ कुरान के तरीके से वजीफे भी बता सकती हैं जिससे आपको सब्र आए। यार अपने रिश्तेदार धोखा दे गए ना, तुम कसम खुदा की इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दो, खत्म। तुमने जो किया भूल जाओ, महविश उससे मत मैं मिलो महविश और सबर उसके नहीं ऊपर दिल आता, मत दुखाओ। मैं सबर महविश नहीं अभी आता, और मैं मांगेगी सबर तो ये नहीं और आता। देंगी, ये वो बंदी है। अभी ये मिस्टर जो है, वेलकम। आपने एक सही आवाज देगा जज तो फिर किया, खड़ी हो जाएंगी। हाँ आपने सही जज किया, बहुत बिल्कुल सही जज किया। ये अभी दोबारा खड़ी हो जाएंगी अगर कोई कहेगा ना यार ये मसला है, यार ये मसला आ गया, अभी ये नहीं, हर आप चीज ये बता यार देंगी। हिना आप ये मेरे समझिए, साथ यहाँ मसला आने है के यार, बाद कुछ भी करो किया है। हिना। हिना मेरे साथ कुछ हुआ हुआ है, करो कुछ हिना। ये ये संभालो, बात मैं भी संभालेगी ये सीन मुझे सारा, मैं भी संभाल लो हिना। संभालेगी ये काम। संभालो इन्हें, अच्छा मैं तुम्हें संभाल आप लेती इनको हूँ। निकालोगी ये मेरे स्ट्रेस पास से हिना आप मुझे ही संभाल निकालोगी मिनट लो। नहीं लगेंगे, ये बंदी खड़ी हो जाएगी यार, ये वो बंदी है। यार कहाँ खड़ी होगी ये भी तो बता इवन दो। कि अपना ये घर बार तक लाइक वो बंदी है, तो फिर कुर्बान लॉस कर किसका देने है वाली ना, बंदी है। मैं हैरान ये हूँ कि इसने मुझे लॉस इतना किसका है। कैसे पहचान लिया। यार देख मैं लो। टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं खैर अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं कौन काफी मैं टैरो करी, मैं तुम्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, उसके मुताबिक कर ये लो। देखो पूरी मैंने उन्होंने पहले बता बैठी हुई दिया कहानी आपको, की। पहले बता दिया आपका सारा सीन। और यार मैं तो ये कहती हूँ अभी भी अपनी नई टैरो नहीं रीडिंग बनी यही कर लो बेटा। मैं हमारा खैर 25 साल से पुराना का है, हमारे घर बार में ये सारी चीजें होती हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग किस तरह के क्या कि 100 से ज्यादा लोग तो रोजाना आते हैं डेली के वेलकम साथ। बैक सर। अच्छा तो मैं ही सोचे कहीं ना। मैं अच्छा ये मिस्टर खान आए, इनका आप टैरो कार्ड निकाले ना, ये बड़े मिस्टर शादी खान के लिए आते रहते, उतावले मैंने हैं। देखा हुआ इनको, बहुत जगह देखा है इनके लिए इनको। कोई लड़की नहीं मिलती इनको, ये ऐसी दर बदर फिरते यही रहते काम है, यही काम है, इसलिए ब्लॉक हो जाते हैं मुझसे भी। हैं। ये ऐसी दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, तो कुछ मैंने करो इनको ना। बोला, मैंने कहा हॉस मेरे साथ सेट हो जाएगी नहीं सेट हो जाएगी। ये देख कर चेक इनके बाहर से कर जाके ये पहले से सेट नहीं, हाँ ये पहले से आए हैं मेरे पास, बहुत दफा आते हैं ये। ये उस दिन चिल्लाई थी, मैं उनके बाहर में गया, कहते क्या मसला है? मैंने कहा चेक करना हॉस मेरे साथ अब सेट हो मैं ना किया करो, मैं गालियां देती हूँ, मैं दूसरे टाइप की बंदी हूँ, मैं वो नहीं शरीफ करके बैठी हूँ। कितनी गलत बात है यार, इन ठरकियों का कुछ करो यार मैडोना, कुछ करो। इनका कुछ नहीं हो सकता, बताओ मैं 3 साल नहीं 4 सही साल कह रही है लोग हिना। पुराने होंगे, सोचो आप मेरे इनका बारे में। कुछ नहीं हो सकता। नहीं सी ऐसा चेक तो कर लें फिर देखते हैं। हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ओए चेक तो क्या कर क्या लें, कार्ड। ओए क्या कह रहे हो? क्या कहती है? क्या कह रहे हो? हैं? अरे मैं क्या कह रहे हो? तुम्हारी मजबूर मजबूर कर रहे हो? मैं क्यों मजबूर कर रहे जा रही हो हूँ। अपनी लैंग्वेज माने में? मैं गाड़ी चला दूंगी अपनी, मैंने कैमरा खोल दिया है। नहीं, मैं गाड़ी चलाने दूंगी, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगी। चढ़ा दूंगी, हाँ चढ़ा दूंगी इसके मैं ऊपर गाड़ी। चढ़ा दे। वालेकुम सलाम मैं आ असर, गई, कैसे मैं आ गई, हो? जितनी मुझे आनी है, मैं ऊपर चढ़ा सुबह सुबह घर से कॉल आती है तो मैं वेला बंदा हूँ, टेंशन नहीं। कोई बात ले हो हाय आओ तुम्हें मैडोना, काम पे लगाएं। मैडोना इनसे मिले अजहर से, ये भी दुबई में होता है। माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, इनकी भी कैसे हैं कुछ आप? टैरो रीडिंग कर के बताएं। बस सही है, मैं सोने जा रही हूँ गाइस, अरे मैं भी नहीं, ब्लॉग नहीं खोलती, इधर ही खोल जाती है। अच्छा लास्ट मिस्टर खान को चेक अरे करके हो आप मैडोना, आप पढ़ती हैं, मतलब आप बताती हैं, आप मुझे भी बता दो ना यार। क्या जानू, पूछे आप डेट ऑफ बर्थ के साथ आके, या सबके सामने पूछेंगी या अकेले पूछेंगी, भी बता दीजिएगा पहले नहीं, मुझे सबके सामने बता दे, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो महवेश ठीक जी पता क्या बस हुआ सबके सामने। महवेश जी है। नाम ही ना ये 5-6 दिन नाम पहले हिना ना नाज है ऐसे मेरा। आने वाली चीजें बताओ थोड़ी बहुत, हाउ नो हो जाएगा 3 मंथ्स का हाँ बिल्कुल। अपकमिंग का, सही है ना? नहीं डेट ऑफ कैमरा खोल के बताओ ना, ये क्या कर रही हो? हमें आवाजें अजीब अजीब सी आ रही है। कैमरा खोलो। अपने असर आवाजें आ रही, आवाजें आ रही, गंदी बच्ची। गंदी आवाज आ रही। कैमरा खोलो, हमें क्या पता क्या कर रही है। कैमरा खोलो। की आवाज आ रही है, इसलिए काम कर रही हो। कोई हाल नहीं
अच्छा अब ठीक है, अब हमें मजा आ रहा है। कार्ड आया है, खुशी वाला टाइम लाइफ में आ रहा है, बेहतरी होती नजर आ रही है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, ग्रेटिट्यूड करो, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, लाइफ में बहुत ज्यादा बेहतरी होती नजर आ रही है, अबंडेंस जिंदगी में आ रहे हैं, सही है। लेकिन जितने लोगों के साथ किए उन लोगों से लड़ाई झगड़ा भी नजर आता है आने वाले वक्तों में। लोग मेरी कोई जिंदगी में मैंने छोड़े ही नहीं है। और ये साथ किधर गई साथ नया करियर और नया माफ फ्रेंड भी कर जिंदगी दिए। में आ रहा है। नया फ्रेंड मैं तो जितना नहीं, हो सके चैरिटी और मजीद करें, ये देखें, मैंने फॉलो जितना किया। हो सके करें। और जो हडल्स आएंगे करूंगी। आपने ही ना करना है, आपने देने वाला हाथ रखना, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। मेरा हमेशा मेरा देने नया वाला फ्रेंड ही आपकी हाथ लाइफ रहता हाँ, है। नहीं रहना है, अभी और अल्लाह रहना से है, दुआ अभी करती रहना हूँ कि है। मेरा हमेशा देने वाला ही यार हाथ रहे। बहुत अच्छी बात है यार, ये तो। और खानदान वालों के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही 3 मंथ्स और के लेने अंदर। वाला हाथ कौन सा है ये भी बता है दो। ना आप मेरा लेने वाला है हाथ ना, है मैंने ही नहीं, वो आपको टूट आप ही गया है। फॉलो किया है, तो आपकी वो लगता लाइफ में नया फ्रेंड रहा है। है मैविश को लगता है कि जी, मेरे जी। पैदा होते ही वो था ही नहीं। अच्छा, है ना, लेने वाला हाथ। अवेयरनेस के हाँ, मामला हैं, कुछ जगहों पे है ना, टेंशन कैसे है हैपेंडिंग ना, करती हो। कुछ चीजों में टेंशन नजर आती है, आती हुई। किसमें? अवेयरनेस के मामला हैं, कुछ जगहों पे ध्यान दीजिएगा, गौर आसानी अच्छा, कीजिएगा। कुछ है मसले मसाइल नजर आते हैं, कुछ अवेयरनेस, कुछ ना टेंशन देता हुआ कोई बंदा नजर आएगा आपको कुछ 3 महीने के अंदर ना, किसी किस्म का, तो तो उसमें नहीं, अपने ध्यान मैं तो नहीं हूँ एहतियात ना, करनी है। सीरियस मामला अच्छा, है भाई। अगर आप तुम नहीं कौन से अभी वाले हो? बताना चाहते मुझे प्राइवेटली बता देना। अवेयरनेस के मामला भी नजर आते हैं, और साथ साथ दी फील ऑफ फॉर्चून का भी मसले मसाइल आएंगे, लेकिन आप उससे निकल जाओगे क्योंकि आपका देने वाला हाथ है ना, मतलब यूं करके रखते हो हाथ के, कोशिश करते हो कि कुछ ना कुछ मैं किसी से खुद बेशक ना करो, कुछ दे दो। पता नहीं, मुझे नहीं बेशक पता, लेकिन आपने बताया वो अलग बात है, जो मैं बता रही हूँ वो मेरी अलग कार्ड्स की प्रेडिक्शन सारी। बेशक ऐसा यार ही है। मडोना की ना, मैं बता दूं, ये फ्री में कार्ड रीड नहीं करती, इसने मेरे लिए किया है, लेकिन आप जो भी इनको सपोर्ट करें तो इनको फॉलो भी करें। कितना मैंने तो बड़ा ये कर हाथ आपकी लग लिया, रहा है। मैंने रीडिंग कर अरे लिया, मैं मैंने कर लिया। अजहर, हाँ जी बोलें अजहर, क्या जानना चाहते हैं। 6 से 7 दिन पहले ऐसे लाइफ के ऊपर एक लड़का था, लाहौर से था, तो वो हाँ भी हाँ कुछ हाँ, बता रहा था, तो थैंक यू। मैंने बोला ब्रदर प्लीज मेरा भी थोड़ा चेक कर दो ना। तो बोलता ब्रदर पहली तो बात है, आपने पहले मेरी बात पूरी सुनी। मैंने बोला जी जरूर। और बताते रहे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला देखिए अभी के जो आपके स्टार्टिंग पिछले 25 दिन गुजरे हैं ना मेरे भाई, ये आपके बहुत ही मतलब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपका काम नहीं चल रहा, फैमिली में कोई ना कोई एक आध बंदा है जो आपके से मतलब कोई ऐसा टोट करने की कोशिश कर रहा है, आपको थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ना बिल्कुल काम नहीं चल रहा। तो मैंने बोला यार ब्रदर ये आपको कैसे पता चला? देखिए भाई ये कार्ड बता रहा है मुझे। मैंने बोला अच्छा सही बात है। तो उसके बाद आपका बिजनेस आपको काफी लॉस हुआ पिछले 25 दिन में। यकीन माने मैं इसके पिछले 25 दिन में दूसरे 2025 के सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट वाले मुझे दिन ये 25 गुजरे ना, मेरे ये दिन गुजरे। तो आप तो किसी मतलब गलत अगर आदमी के हाथ लगे ना, आप जाली बाबा के हाथ लग नहीं गए। नहीं बिल्कुल मुझे किसी से भी पता है क्या और है, मैं आपको एक अजहर, चीज मैं में आपको बिलीव एक है, ये I'm बात sorry to एक say, एक आपने फ्री मुझे में नहीं करवाया होगा अजहर, ना, आपको मैं एक आपको बात चाहिए और पहले बकरा बताती ले हूँ। पूरा। सॉरी राजा, एक मिनट, जी सॉरी, जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जी आप जिस बिलीफ और जिस सोच के साथ जहां जाएंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे, उस चीज का आपको ऑपोजिट ही मिलेगा। अगर सही आपका फेथ ही नहीं था उस बंदे पे कि अगर इसने ये जो बात की है, आई एम नॉट बिलीव ऑन दैट, तो फिर आप ऑफ कोर्स वो चीज नहीं होती आपकी लाइफ में। मगर आप जब अपना बिलीव इतना थैंक यू। स्ट्रांग रखते हैं, आप फेथ करते हैं, आपकी वो चीज वाकई में सच होती है। बेशक ये तो बिलीव अपने और अपनी एक और जिस बात सोच चीजों सुने, के होती है ऊपर ना है एक और इंसान बात को। सुने, मैं एक होता है ना जिस चीज सियासी पे कामना हमें किया बिलीव है करें। ना, अजहर साहब एक बात जिसे सुने, सियासी जी जी कामना किया करें आप, कि किसी कोई बैठा है तो आप अगले बंदे का नाम ले रहे हैं। पता है मैं किसी की बुराई कर नहीं सकती, क्योंकि मैं ऑन दी बिल्कुल। नहीं नहीं मतलब नहीं यहाँ पे नहीं मैं मीडिया बैठी वल्लाह हूँ, अज़ीम मैं आप मेरे सामने बुराइयां आपको कर रहे हैं ना, कल को 10 लोग हाँ, कोई आपके और सुन रहा होगा तो वो भी हम किसी की किसी बुराई के कर रहे पेट पे हैं। बुराइयां रोटी नहीं पे करनी या चाहिए। किसी के उस पे हम आपकी लात बात नहीं मार ठीक आपको है। सकते। आपको नहीं फेथ, आप नहीं जाएं, आप इसको पब्लिसिटी मैंने अपना बताया पब्लिकली आप वल्लाह इसको अज़ीम बताएं भी ना कि किसी के आप यहाँ सामने। पे बैठे हुए हैं, तो मैंने इसलिए बात नहीं की। अजहर मेरे साहब साथ आप 6 दिन बताएं भी पहले ना हुए किसी है को, जी। क्योंकि आपका फेथ नहीं, आप ना जाएं, क्योंकि पता ये अच्छा तरीका है। वो आपका शायद हो सकता है एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा हाँ, उनके साथ, क्योंकि मेरे मगर सामने लोग इतनी हो बुराइयां सकता है कि वो बंदा गलत नहीं हो। मैं विश मुझे राइट। लोग ना स्क्रीनशॉट देते हैं, ये देखो ये बाबा ये दरबाजी ये बैठी है वो बैठी है। मैंने कहा बात सुनो, नहीं अच्छा लगता, लेकिन दूसरे के बारे में ना करो बुराइयां। नहीं करो, बिल्कुल लोग मेरे नहीं बारे में करना कहते चाहिए। हैं कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, मैडोना बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे बारे में कहते हैं मैं गल्फ में बहुत एक्सपेंसिव बंदी हूँ क्योंकि मेरा है चार्जेस ज्यादा हैं। तो मैंने कहा अच्छा, एक बंदे ने कहा कि ये पैसे लेती है, तो उसने पैसे कम भेजे। मैंने कहा मेरे तो इतना अमाउंट है ही नहीं,
मुझे तो ज्यादा अमाउंट लेती हूँ, मैं तो इतना कम लेती भी नहीं हूँ मैं, जो मेरे काम होते हैं। तो हमारे लिए तो फ्री है कहती फिर। अच्छा, मैंने कहा तुम लोग पकड़ ले जाते हो, तुम लोग तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। मेरे पास स्क्रीनशॉट के साथ सबूत आते हैं सबके बारे में, टिकटॉक में जितना बंदा बैठा है। मैडोना जी हमें तो फ्री है ना सर्विस। यार नहीं, आप लोगों के लिए तो अभी फिलहाल फ्री है, नॉट ऑलवेज। देखें, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हालांकि उनका इतना strategy है, कैनेडियन काम है। इतना आता नहीं है टिकटॉक पे, लेकिन मेरी चार्जेस I know। वैसे अगर कोई काम कराओ तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। जैसे किसी का केस फंस गया हो, किसी को कोई सीट चाहिए हो, कोई पेपर नहीं पास हो रहे, कोई जगह रुक गया हो, तो यार उसके लिए देखो, चार्जेस पता है ज्यादा क्या, है। लुभान इट्स लगती जस्ट लाइक बकौर। दैट। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, यू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शंस जो आपको डॉक्टर दवाइयां देता है, Yes, यू yeah। फॉलो दैट थिंग्स, यू नो। तो डेफिनेटली इसी पूरा कोर्स तरीके करते से हैं हम लोग, कुछ पूरा कोर्स। रूहानी और कुरान के तरीके से भी कुछ चीजें हैं, और हम इंसान कहीं ना कहीं भटके हुए होते ये हैं, आप हमें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक बेशक। है। तो मैडोना तो जी अगर आप आपका उसको पॉजिटिव तरीके से लें, उसको ये सोचें, तो प्रोसीजर जो इसमें आप कुछ करती गलत हैं, नहीं। ये आप लाइक कुरान की रूह से ये होता है मैं आपका नहीं या आपका करती, मेरी डिफरेंट? वालदा करती हैं, मैं नहीं करती। अच्छा मैं एक्चुअली खुला सर बैठती हूँ। मेरी वालदा के सर के बाल तक आप नहीं देख सकते, हाँ फेस देख सकते, सर ओके के बाल तक नहीं देख सकते। ठीक लेकिन है। काम ऐसा करती हैं कि हमने अभी, मैं नाम यहाँ पे गिनवाऊंगी नहीं क्योंकि हमने काफी लोगों ने काम करवाए में, कोई नए नए नहीं बैठे, 25 साल पुराना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खानदानी भेजी बिजनेस तो नाम नहीं है आप लोग इनकी का? इनकी इनकी वालदा का नाम हाँ, हम भेजिए लोग को ना। सैयद गिलानी है ना, तो हमारा तो हिसाब अच्छा किताब दूसरा है। वो कहीं ये आप हमारे लोग ना मुस्लिम कहीं और वे में जा रहे थे, समझ रहे हाँ हैं हाँ आप, जी टैरेट जी कार्ड के थ्रू। तो ये टैरेट कार्ड के थ्रू मैं कहती हूँ भाई यहाँ वापसी आओ, अल्लाह का नाम है, इधर आओ, हल इधर है। ये मैंने ये जो नंबरिंग, ये इससे नहीं हल होता, अल्लाह के नामों से हल होता है। मैंने मुझे खुद भी एक बात करके देखा बताएं। ना, मैंने कहा टैरेट कार्ड में ये जो करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, देखा मैंने, मुझे नहीं सूट किया। वो जो करते हैं ना, मुझे करते हैं वो नहीं सूट किया। मैंने कहा भाई अल्लाह का नाम ज़्यादा बेस्ट है। मैनिफेस्टिंग करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं हम लोग, करते हैं कि हम लोग अल्लाह वाला मैनिफेस्टिंग करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे खाली दिमाग करके बैठ जाओ। अब खाली दिमाग में क्या आना है, अंदर शैतानियत आनी है और तो कुछ नहीं आना। तो मुझे ये बता, मेडिकली भी आप इशू रिजॉल्व करती हैं? जैसे लाइक कैंसर का सेकंड लास्ट स्टेज का करा है पीजी ने, मिरेकल की है। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे डैड जो हैं उनका लाइक ही वो भी तो बेड पर हैं, ठीक है, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ना बोलते हैं ठीक है, लेकिन बस वो वॉइस नहीं है उनकी जो होनी चाहिए, उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। फालिज का अलग उनको मसला, स्ट्रोक हुआ हुआ है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ हुआ है। ही इज इन कनाडा टू, बट ही लिव इन डिफरेंट प्रोविंस, क्योंकि वो जिस प्रोविंस में वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, बट ही इज इन नर्सिंग होम। तो उसका ये है समझ कि हर सकते हैं। पर मंथ लाइक $1500-1600 जो है क्या मैं एज पे क्या है करता हूँ। उनकी? मेरे डैड की जो है एज लाइक बिलीव सो 65-66 है। नहीं, 75 तक के मामा ने ना लोगों को सेट किया। ये वो नहीं है इंग्लिश बूट हाउस वाले, उनको कोई जी मसला आया था इंग्लिश बूट तो हो, ये लाहौर में जो है जेल रोड पे, हाँ, माल रोड पे जो लाहौर है। में भी नहीं। ये आप इनके जो और है ना, जो इनके जो वो होते हैं सैयद साहब के साथ बारे में बता रही हूँ। मैं आपको नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको नाम के साथ हर चीज बता सकती हूँ। ब्रांचेस इनको इनकी बिल्कुल डिफरेंट। अंदर बिल्कुल ये तबीयत खराब हो गई थी, उठने बैठने ना काबू, मतलब बैठ गए थे, बेड पे लग गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। आपको पता है हाँ हॉस्पिटलाइज तो पाकिस्तान में कितने अच्छे अच्छे जी होते हैं माशाल्लाह से, यू नो दैट जी, ऑल। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर खर्चा भी अच्छा मांगते हैं, कोई अच्छी चीज से नहीं मांगते। तो खैर वो अफोर्ड कर सकते तो कर रहे थे। खैर वो उठा के, उनको अल्लाह का शुक्र, मालिक का बड़ा एहसान है, अब वो दुबई भी आ जा रहे हैं, मतलब इजी हो गया उनको, खुद चल फिर के जा रहे हैं। पहले यार वैसे नर्स अगर आप था। मेरा ये मसला हल करा दे तो माँ बाप से बढ़ के तो फिर कुछ नहीं है ना इंसान के लिए। शेवा वेलकम। मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको इनबॉक्स करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। यार मैं तुम लोग को मिस कर जा रहा हूँ यार। मिस क्यों कर रहे हो, हम यहीं बैठे हैं मैं भाई, हम कहीं नहीं जाते तुम्हें छोड़ के। इसको बढ़ा दो। तुमको सुन नहीं पा रहा ओके। क्यों नहीं हो रहा यार, मेरे साथ भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको बड़ा मैडोना जी आपको करो। मैंने फॉलो तो कर ही लिया है। हाँ किससे फॉलो कर लिया आपने? अच्छा, मैं अपनी अब जा रही हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, मैं भी मडोना कहाँ जा रही हो? मेरी सुबह की ब्रॉड होती है ना, तो अभी 9 बजने वाले हो गए। ओह, मेरा 8 अच्छा, बजे खुल अच्छा। जाती है, 8 बजे खुल जाती है। ओके लाफिज, ओके मडोना, थैंक यू सो मच। लव यू यार, लव यू लाफिज, बिग रिस्पेक्ट। टेक केयर। थैंक यू सो मच। हिना, वेलकम बैक हिना जी। यार वैसे महवेश जी, ये क्रेडिट आपको जाता है किस चीज का? वो इस चीज का कि लाइक आई डिडंट नो अबाउट दिस मिस मैडोना और उनका क्या काम है।
तो आपके थ्रू देखें, हर है ये चीज का चीज। वसीला होता है ना, हर चीज का वसीला हाँ, होता है, हम रीजंस होते हैं, ये क्रेडिट लेकिन बिल्कुल आपको चाहता थैंक यू। हूँ। फिर भी देखिए जी, सेहत जो है वो तो दे दी तो अल्लाह ताला ने, ये एक वसीले बनाए बेशक, हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वसीले से अगर बन जाए कोई बात तो हम कहेंगे यार हमने अपनी जिंदगी जी ली। अगर पेरेंट्स के लिए आप यही कुछ है, कर सकते हो जिंदगी में, तो मैंने बड़ी एग्री कोशिश एग्री, की है, बिल्कुल। लेकिन अब मैं इनसे इनकी अल्लाह पाक खिदमत आपके जरूर हासिल वालिद को करूंगा। सेहतयाबी दे और आमीन। अच्छी सेहत दे इनको, और आई होप बिल्कुल, अगर मेडोना से आपकी कोई भी बात हो, आई होप आई मैं प्रेयर, जरूर मैं करूंगा दुआ उनसे, मैं करूंगी कुछ जरूर। मिरेकल हो जाए, अल्लाह करे कुछ। अल्लाह करे यार। अल्लाह पाक ने यार किसके हाथ में क्या दिया है किसी को नहीं पता होता, हम इंसानों को नहीं पता होती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन 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 साइंटिफिकली मेडिकली जो दुआओं से, कंडीशन है, हाँ, दुआओं से तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो हालात मैं बेशक, अपने डैड के बिल्कुल। देख रहा हूँ यार, उनके लिए तो उठना बड़ा मुश्किल है। वो तो मशीन है, उससे वो उनको लिफ्ट अप होती है, क्योंकि वो एज भी बढ़ता जा रहा ओल्ड हाउस में हमेशा वही होते हैं जिनको कुछ ज्यादा ही, प्रॉब्लम्स होती कैनेडियन भाई, है। हेलो। वो जी ना जी। शायद आपने आपने सुना हो, एक आते हैं ये टिकटॉक पे आते हैं, वो डॉक्टर है वो, और ना वो सूरह रहमान थेरेपी करते हैं, ठीक है, डॉक्टर जावेद। ऑलराइट। तो वो आप उनको सुनिएगा, फिर ना है तो अल्लाह का कलाम, आप जो अपने वाले साहब है ना उनको एक हेडफोन लेके दीजिएगा और 3 टाइम सूरह रहमान, और ना वो अल्लाह 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 बोलकर ना पानी पीने के लिए कहते हैं। अगर आप उनका सर्च करोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। वो पानी नहीं पी सकते डैड डॉक्टर मेरे, जावेद, उनको ट्यूब लगी हुई है, फीडिंग ट्यूब लगी हुई है, कुछ वो खा पी नहीं सकते। जो भी सीन है, मतलब उन्होंने ना कैंसर को रिकवर किया था, एड्स को भी रिकवर माशा, किया था ना, उसके बाद वो आगे आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो आप उनकी वीडियो देखोगे ना आपको आइडिया होगा। मुझे आप उनकी सूरह शेयर रहमान कर तो वैसे दीजिएगा भी, इनबॉक्स में, उनका लिंक या उनकी आईडी जी मैं प्रोफाइल जो भी है करता हूँ सूरह रहमान प्लीज। जो वैसे भी शिफा है। वैसे तो कुन आप ये फायकुन, करिएगा। आप वैसे ये रीड करें ना, वो कुन फायकुन हुवतन, इससे भी बहुत मैंने देखा है, वीडियो 2-3 देखी है, तो असर होता है। कैंसर की बीमारी कोई भी हो तो लोगों को मैं बाकी जरूर यकीन पे जरूर। है, सारा सारा दारोमदार जो है ना अल्लाह के यकीन पे कलाम है, है। यकीन कामल है। जी अगर मैं वो नहीं जरूर कर करूंगा सकते ना, इंशाल्लाह। जो उनके पास बैठे हैं, आपकी वालदा है या सिस्टर है, वो करें, जी, तो वो पिए पानी ना, फायदा उनको होगा। आप उनको सुनोगे ना तो आपको कुछ समझ आएगी। मेरे डैड मैं तो खुद भी मुझे तो सूरह रहमान को ज़बानी आती है, सूरह रहमान को ज़बानी आती है। वो जब थे, बहुत जब अच्छी नमाजें वो पढ़ते थे तो वो खुद से करिया करते वो थे, ये बोलते कलाम हैं, पढ़ते वो थे। ना कारी बासत की आवाज में बोलते हैं, सुनने के लिए कहते हैं इनमें असर बड़ा है, विदाउट तर्जमा, कि आपका फुल ओके, फोकस हो सुनने पर। तो ऐसे करके कुछ बताते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा ना, आप उनको सुनिएगा। तो प्लीज। ये भी काम अल्लाह का नाम है ना, उसमें बरकत ही बरकत है। जी जी, मैं बिल्कुल ये करके देख रहा, तो यार मौजूद हो रही है, तो हमें इससे बढ़ के और क्या चाहिए यार। जी जी जी, आप उस पर सुनोगे ना, बड़े बड़े मौजे हुए हैं, बड़े बड़े लोग ठीक हुए हैं। अल्लाह के नाम से बड़ी माशाल्लाह, कोई चीज नहीं है। माशाल्लाह। बस अल्लाह करे ये मौजे और हो जाए, फिर तो हम सियाटल इंशाल्लाह जाएंगे, टोकरियां, मिठाइयों की टोकरियां लेके हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माँ बाप से बढ़ के क्या क्या बात चीज़ है, है। अल्लाह पाक शिफा दे, उनके लिए बिल्कुल, दुआ है। अल्लाह आमीन पाक हमेशा सलामत रखे। माँ बाप जैसी तो दौलत ही नहीं है दुनिया में। दौलत नहीं है जी, दौलत कोई नहीं है। अब हाँ ये जी, हमारा इनके टाइम है कि वी मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स यार। उन्होंने इतना स्ट्रगल जी जी किया हमारे बिल्कुल। लिए, तो हम क्यों ना करें यार। तो कोशिश है, जी ठीक है। जी अब देखो बातों से बातें निकली, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर अपने डैड के लिए कि अगर जी कोई जी, पॉसिबिलिटी बन जाए अल्लाह पाक तो से दे, व्हाई नॉट, ढेर सारी दुआ है। क्यों ना करें। और क्या। अभी मैं वैसे ईद पे जा रहा और ये हूँ उनसे मिलने, अच्छा, अपने लाइक फैमिली के साथ, अपने अपने बच्चों को लेके मैं जाऊंगा। कुछ ईद नहीं, रोजे कुछ 3-4 गुजारूंगा, ईद करके फिर 7-8 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को फैमिली को देख के वैसे ही आधे ठीक हो जाएंगे वो, यार इंशाल्लाह। ठीक है ना, वो रोते हैं, बस देख के रोने लग जाते हैं। ब्रदर बस जो अल्लाह की एज जात है पाक है ना, ना, हमारी एज तो है। दिल से दुआ है अल्लाह इंडियन पाक भाई, उनको अल्लाह पाक सुबह उनको कामला शिफा दे। दे। ये एज ऐसी आमीन है, आमीन। इसमें ना लोग ऐसे हो जाते हैं, नरम दिल के हो जाते हैं, उनको रोना आता है, उनको बिल्कुल। दिखता है ना सारा कुछ आगे। तो ठीक है, हमने भी इस एज में जाना है और हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं। यार अब उनमें बचपना तो आ गया बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे बिल्कुल रोने लग बिल्कुल, देखे जाएंगे ना, कोई। वो ब्रदर वो देखिए चीज जब मैं कहते देख रहा हूँ। हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो छोटे बच्चों हाँ, बच्चों वाले हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चों के सेम हो बेशक जाते ब्रदर, वो रिवर्स होता है। हाँ जी जी। जब जब बच्चा और बूढ़ा, क्यों कहते हैं कि बच्चा और बूढ़ा सेम सेम होते हैं, ठीक है। हैं। लेकिन बिल्कुल बच्चा बिल्कुल वो होता है जिसे किसी चीज की समझ नहीं है। जो बूढ़ा हम्म, हो जाता है बंदा, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी आदतें वैसी हो जाती है। लेकिन यही इम्तिहान
उसी टाइम में बिल्कुल बिल्कुल माँ बाप की बीमारी में, माँ बाप की शिफा याबी में, और माँ बाप के उसी बचपने में ही सारी औलाद की और हम लोगों की यहाँ पे जैसे एक एग्जाम चल रहा है ना, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है उसके पेपर होते हैं, तो ये हमारे रियल लाइफ के पेपर हो रहे हैं। अब आप बिल्कुल, अपने बिल्कुल। वालिद के लिए कितने परेशान है, ये आपके ऊपर इम्तिहान है। ठीक है, जब मैं आज से 2 साल पहले मेरी अम्मी चारपाई से उठ के पानी नहीं पी सकती थी, ठीक है, तो हम लोगों ने इस्लामाबाद में 10-15 लाख रुपए के टेस्ट करवाए, दवाइयां दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे गांव में एक छोटा सा, एक बिल्कुल छोटी सी मामूली दुकान, 700 रुपए की दवाई ली होम्योपैथिक की शाह साहब से। उन्होंने बोला कि पुत्र क्या मसला है, उन्होंने बोला कि पुत्र क्या मसला है, उन्होंने बोला कि अम्मा जी हमारे चारपाई से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते। उन्होंने बोला पुत्र मसला ही कोई नहीं है, शिफा देने वाली वो रब की जात है, वसीला मैं बनता हूँ। दवाई दी, 10 दिन के अंदर अम्मी चारपाई से उठ के अपने जो सहन है घर पे चक्कर लगाना, खाना खाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद काफी दोबारा बीमार है। मैं पाकिस्तान गया 2 महीने की छुट्टी, मैंने 15 दिन डॉक्टर से मेडिकली रिपोर्ट ली कि क्या ये थोड़ा सफर कर सकते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से, मैं अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ, मैंने बोला यार लाइफ के 15 साल दुबई में गुजार दे, तो कोई ऐसा बिजनेस बताओ कि मुझे प्रॉफिट हो। उस बंदे ने एक बात की, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला कि अजहर भाई आप किस दुनिया का बिजनेस करना चाहते हो या अगले जहान का। मैंने बोला भाई इस दुनिया में तो करके देखिए, अगले जहान का क्या बिजनेस है वो बताओ। उसने बोला मेरे भाई जो तेरे पास थोड़ा सा भी जमा किया हुआ है ना, अपने अम्मा अब्बे को साथ में ले और उम्रे पे चला जा। सुभान अल्लाह। खुदा पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। मेरी अम्मा जो चारपाई से उठ के बैठ नहीं सकती थी, उन्होंने 750 किलोमीटर मक्का से मदीना का बस में सफर किया और एक टैबलेट नहीं ली। माशाअल्लाह। और मेरा ये दिल में ये हम लोग ख्वाहिश लेके गए थे, मेरी शादी हुई, अल्लाह पाक ने 2 रहमतों से नवाजा, मेरी 2 बेटियां थी, है अभी। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरी माँ वहां पे जाके दुआ करो अल्लाह पाक मुझे बेटा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेटा दिया, और दिल में ये उम्मीद रखी कि उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। उसका नाम मोहम्मद भी रखा है, अल्लाह पाक ने बेटा भी दिया, और अम्मी भी बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, तो आपका जो यकीन है ना, वो जो डर है वही सबका डर। जब आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, बेसिकली आपका अकीदा और ईमान जो है ना वो पुख्ता होना चाहिए। बिल्कुल, वो आपका अकीदा ईमान पुख्ता होगा। अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की बैठी थी, मैं बोलना नहीं चाहता तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, बिल्कुल उनकी बात सही है, लेकिन ब्रदर आई एम सॉरी टू से, ये किसी से भी हम देखिए, हम मुसलमान है ना, हम कभी भी, ये इस्लाम हमारा बड़ा ना प्यारा और बहुत नरम लहजे वाला है, नरमी का पैगाम देता है। हम किसी को भी सख्ती से इस्लाम में नहीं ला सकते, मैं डंडा मार के तेरे सर फाड़ देने इस्लाम में आ नहीं। जो भी बंदे ने, जो भी लड़की लड़के जो हिंदू थे मुस्लिम हो, उन्होंने प्यार से शफकत से इस्लाम में दाखिल हुए, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये है, हम किसी इंसान से तवक्का कर नहीं सकते। हम लोगों का उस हस्ती के ऊपर अकीदा है जो हमने ना मैंने देखे, ना मेरे बाप ने देखे, ना मेरे दादा ने देखे, और ना मेरे परदादा ने देखे। जो नबी औलिया वली इकराम इस दुनिया से चले गए, हमारा एक अकीदा है, हमारा एक उन पे आंखें बंद करके हमारा उन पे अकीदा है, ईमान है हमारा। आप अपना ईमान मजबूत रखे। जो कुरान हदीस कहती है किसी भी इंसान से हाल पूछना या बताना यह गलत। अगर किसी के हाथ में शिफा है या दुआ करता है, अच्छी बात है, अल्लाह पाक सबको शिफा दे। अगर किसी के वसीले से कोई हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मना किया गया है इस्लाम में ना, हाथ दिखाना, फाल नहीं करवाना, दुआ करना नो इश्यू। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना असर के ये सारी चीजें मना की गई हैं, तो देयर इज लाइक सो